Hello everyone, let us do this interesting problem from rotation from the book Pathfinder. And every question that I bring to you on this channel is an amazing learning opportunity because all the questions from this book are just the right difficulty level for JEE Advanced. So you should definitely try this question on your own by pausing the video. And let us move on to the solution. तो हमें given है that there is a uniform hollow cylinder of mass m and it rests on a wedge of mass capital M that is held on a frictionless slope of inclination theta. तो ये इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर हमने एक वेज को पकड़ के रखा हुआ है, इट इज़ हेल्ड इन प्लेस. और इंक्लाइन प्लेन और वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. एंड दिस सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द वेज and there is friction, there is sufficient friction between the wedge and the cylinder such that the cylinder always rolls without slipping. Now after the wedge is released, we have to find its acceleration, right? So just like any questions of such type, we have to first draw the force diagram very neatly and very carefully with a lot of focus. तो wedge के force diagram को देखते हैं. तो इसमें mg acts downwards. This normal reaction R is due to the cylinder. This normal reaction N acts from the inclined plane, right? And this friction acts from the cylinder. तो friction किस डायरेक्शन में होगा ये हमें इनिशियली नहीं पता है. वी कैन ट्राई टू डिड्यूस इट बाय थिंकिंग लॉजिकली, बट वी डोंट इवन नीड टू डिड्यूस इट बिकॉज इट डजेंट मैटर. अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने गलत लिया होगा तो फाइनल आंसर विल कम आउट नेगेटिव. सो फ्रिक्शन यू कैन टेक इन एनी डायरेक्शन, राइट? And this acceleration is down the inclined plane. So acceleration of the wedge is obviously down the inclined plane. So I have also shown this in the diagram. फिर wedge का cylinder का force diagram देखें तो mg acts downwards. Normal reaction from the wedge acts in the upward direction. It is denoted by R. तो ये R और ये R are equal and opposite because they are an action and reaction pair. Newton's third law. Or this friction and this friction are also an action reaction pair. They are equal and opposite, right? Then acceleration of the cylinder कैसे आया वो थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि मैंने acceleration को ऐसे लिखा है कि the acceleration of the center of mass of the cylinder has two parts. is the sum of two vectors. एक vector जो है A, that is the acceleration of the wedge itself, right? और जो blue वाला vector है, that is the acceleration of the cylinder relative to the wedge. तो यहाँ पे बहुत important point ये है कि acceleration जो cylinder का होगा relative to the wedge, मतलब when I say acceleration of the cylinder, I mean acceleration of the center of mass of the center of the cylinder. तो cylinder के cm का जो acceleration होगा relative to the wedge, वो सिर्फ horizontal direction में हो सकता है because this top surface is horizontal, right? So if you imagine yourself moving with the wedge, so if you suppose are sitting on the wedge itself, the cylinder can only move in the horizontal direction as seen by you, right? तो मतलब relative acceleration of cylinder relative to the wedge must be horizontal. तो जो total acceleration होगा ग्राउंड फ्रेम से सिलेंडर का, वो दो चीज़ों का सम होगा. एक तो वेज का एक्सेलरेशन और सिलेंडर का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द वेज. तो ये सिंपल सी बात है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को जब हम इन्वर्ट कर देते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. तो सेकेंड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं अगर. सो आई होप यू आर राइटिंग दिस इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. तो हम जब उसको इन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन को तो वी फाइंड दिस रिलेशन दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रिलेटिव टू द ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. तो एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द फ्रेम वाला ये हो गया, ब्लू वाला हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मतलब मैं वेज को फ्रेम बोल रहा हूँ, ये हो गया, राइट? तो दोनों का वेक्टर सम विल गिव मी टोटल एक्सेलरेशन of the cylinder, right? And alpha is the angular acceleration of the cylinder, right? I have assumed it to be in the clockwise direction. Again, small a and alpha can be assumed in any direction. Small a को मैं rightwards भी ले सकता था, बस horizontal लेना था, और alpha को भी मैं anti clockwise ले सकता था, does not matter. So now counting the number of unknowns, I have 6 unknowns.
So you can check that we have 6 unknowns, and you can also check that the diagrams are complete. There is no missing force. There is nothing that I've missed. And after I've drawn the complete diagrams, I notice that there are 6 unknowns. So I need six equations. So I start with making the equations. तो वेज के लिए तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं द नेक्स्ट स्टेप इज माई चॉइस फॉर द एक्सिस, राइट, कि मैं वेज के लिए जो इक्वेशंस बनाऊँगा वो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को कंसिडर करूँगा या पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो मैंने नोटिस किया कि 3 फोर्सेस जो हैं वो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हैं. mg, r और फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही हैं. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा और नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो अदरवाइज हम अगर दूसरी डायरेक्शन में करते, पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन करते, तो हमें इन तीनों को रिजॉल्व करना पड़ता, राइट. सो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा टू मेक द इक्वेशंस लेस बल्की, आई हैव चोजन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस. तो बस इसमें ये एक थोड़ा सा सटल पॉइंट है कि एक्सेलरेशन को भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि अब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है, a cos थीटा है लेफ्टवर्ड्स, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना है, a sin थीटा है डाउनवर्ड्स, राइट. सो आई मेक द हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, लेफ्टवर्ड फोर्स n sin थीटा माइनस राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू ma cos थीटा. वर्टिकल में डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस r माइनस अपवर्ड फोर्स n cos थीटा इक्वल टू ma sin थीटा, राइट. इट मेक सेंस. देन फॉर द सिलेंडर में तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही लेंगे. तो लेफ्टवर्ड फोर्स फ्रिक्शन इक्वल टू मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो नेट एक्सेलरेशन आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे कि इन दोनों से के सम से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा और इसका भी लेना पड़ेगा. तो a cos थीटा प्लस a इज द नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. वर्टिकल में mg माइनस r इज इक्वल टू नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन विच इज ma sin थीटा. ओनली दिस पार्ट हैज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट. फिर रोटेशन की वजह से जो इक्वेशन आएगी टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो उसमें क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हुए, सो क्लॉकवाइज टॉर्क, देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग अ टॉर्क विच इज फ्रिक्शन अबाउट द सेंटर. तो ये टॉर्क इक्वेशन इज अप्लाइड अबाउट द सेंटर ऑफ मास. यू हैव टू बी क्लियर कि ये किस पॉइंट के अबाउट है टॉर्क की इक्वेशन. तो एफ आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर विच इज mr स्क्वायर बिकॉज इट्स अ हॉलो सिलेंडर times alpha. So we have 5 equations. Then we need another equation which will come from restraint, which will come from the not restraint, constraint, from the fact that cylinder is rolling without slipping. So cylinder rolls without slipping on the wedge. तो ये हमें क्या इक्वेशन देगा, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सिलेंडर के जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन है और जो वेज का एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए, राइट. तो सिलेंडर के बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो तो a sin थीटा होगा, राइट. वो तो a sin थीटा होगा क्योंकि सिलेंडर के बेसिकली सिलेंडर के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेंडर के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन इज अ सम ऑफ 2 एक्सेलरेशंस. एक तो cm का एक्सेलरेशन, और cm का एक्सेलरेशन खुद इन दोनों का सम है, ठीक है. तो cm का एक्सेलरेशन इन दोनों का सम है प्लस रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा विच इज़ r अल्फा विच पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर डिफरेंट पॉइंट्स. तो सिलेंडर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके लिए r अल्फा की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है सेंटर के अबाउट. तो दिस पॉइंट इज मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू रोटेशन. इट हैज़ अ लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन r अल्फा. ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द CM उसके पास भी, मतलब CM वाला एक्सेलरेशन भी उस पॉइंट के पास है. तो इस पॉइंट का नेट लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्मॉल a प्लस r अल्फा प्लस a cos थीटा, प्लस a cos थीटा भी आएगा. तो CM के एक्सेलरेशन में 2 टर्म्स आएंगे, a प्लस कैपिटल A cos थीटा, और रोटेशन वाले एक्सेलरेशन में r अल्फा आएगा. तीनों लेफ्ट की तरफ है. अब ये तीनों एक्सेलरेशन मिल के सिलेंडर के बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें देते हैं. So this I have written here. So this left side, complete left side is the net horizontal acceleration of the bottom most point on the cylinder. And what is the right hand side? It is the acceleration of
net horizontal acceleration of the point on the wedge which is in contact with the cylinder. तो basically ये equation ये बोल रही है कि the cylinder will roll without slipping only if the horizontal accelerations of the 2 points. Which 2 points? The 2 points which are in contact, right? The bottommost point of the cylinder and the point on the wedge which is in contact with the cylinder. तो 2 points basically दोनों bodies का एक एक point ही आपस में touch कर रहा है और दोनों का acceleration same होना चाहिए. अगर दोनों का acceleration different हो जाएगा then very soon they will have different velocities. तो हम obviously we are talking about the situation when we have just released the system. तो उसके बाद acceleration दोनों का equal होना चाहिए. अगर अलग अलग होगा तो immediately their velocities will become different after a small time interval. And that means there is slipping happening. So accelerations of both must be same. So horizontal acceleration of the bottommost point must be equal to horizontal acceleration of the point on the wedge. और wedge के तो सारे points का acceleration यही है. wedge में तो कोई rotation वगैरह तो है नहीं, तो सारे points का acceleration same है. तो horizontal component is a cos theta. So this is the equation we get, and a cos theta cancels, and this is the equation that we have. A plus r alpha is equal to 0. So now we have to solve these 6 equations. तो अब 6 unknowns हैं, 6 equations हैं. We can solve and they will give us the answer. तो अब जो next part है उसमें ये सोचेंगे कि equations solve कैसे करते हैं. तो equations efficiently solve करने का क्या तरीका है. तो सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि जो 6 के 6 unknowns हैं उसमें से सारे unknowns obviously important नहीं है. हमें तो कैपिटल ए निकालना है, राइट. अब थोड़ा इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कैपिटल ए कहाँ आ रहा है. कैपिटल ए यहाँ आ रहा है, राइट. तो देयर आर 4 इक्वेशंस इन विच कैपिटल ए अकर्स, राइट. कैपिटल ए के साथ क्या क्या आ रहा है. यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, फ्रिक्शन है, राइट. तो बेसिकली हमें सोचना है कि बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करना है. अब जो कैपिटल ए के अलावा बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करना है जल्दी से जल्दी. तो कैसे एलिमिनेट करेंगे. जो चीज़ें बहुत ही कम इक्वेशंस में आ रही हैं उनको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना बहुत ईजी है. जैसे फॉर एग्जांपल n जो है वो सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, तो n को तो तुरंत एलिमिनेट करो बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट टू एलिमिनेट. जस्ट दीज 2 इक्वेशंस हैव n. तो इन दोनों को इक्वेशंस को कंबाइन करके n को एलिमिनेट कर दो तो यू विल गेट ओनली 1 इक्वेशन. एंड आफ्टर दैट द नंबर ऑफ इक्वेशंस विल रिड्यूस टू 5 एंड द नंबर ऑफ अननोन्स विल ऑल्सो रिड्यूस टू 5. तो ऐसे ही करना है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और अननोन्स को रिड्यूस करते जाना है अंटिल वी हैव ओनली कैपिटल ए लेफ्ट. ठीक है. तो इन दोनों में मैं n को एलिमिनेट कर सकता हूँ. साथ में मैंने ये नोटिस किया कि इसमें और इसमें r जो है मैं उसको भी एलिमिनेट कर सकता हूँ एट द सेम टाइम, क्योंकि r के लिए भी सेम स्टोरी है कि r ओनली अकर्स इन दीज 2 इक्वेशंस. सो इफ आई कंबाइन दीज 3 इक्वेशंस आई कैन एलिमिनेट n and r at the same time. So this is what I've done. Multiply the first equation by cos theta, multiply the second by sin theta. तो n कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें sin theta से मल्टीप्लाई किया तो we get r sin theta. Therefore इसको भी अगर sin theta से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो r sin theta दोनों में कैंसिल हो जाएगा. So first equation into cos theta, second into sin theta plus fourth into sin theta को ऐड कर दिया तीनों को, तो n और r कैंसिल हो गया and we get this. So n and r are gone, right. So now we have अब इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कैपिटल ए के अलावा सिर्फ फ्रिक्शन अननोन है, बाकी सब तो नोन है, बाकी सब तो पता है. तो फ्रिक्शन को अटैक करना है, फ्रिक्शन को कहीं से लेके आना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए. तो ऐसे मैंने ऐसा सोचा कि फ्रिक्शन को मैं कैपिटल ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. फ्रिक्शन कहाँ है. सो इन दोनों इक्वेशंस में फ्रिक्शन है. सो इसको मैंने रीराइट करके ऐसा लिख लिया, राइट. बट इसमें अल्फ़ा नहीं है, इसमें अल्फ़ा है और इस इक्वेशन में अल्फ़ा है बट यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है. तो यहाँ पे ए है बट ए और अल्फ़ा यहाँ पे रिलेटेड है. तो क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके फ्रिक्शन को ए के टर्म्स में ले आएंगे ताकि यहाँ डाल के friction we can get in terms of only capital A, and so that we can put it in this equation and get capital A.
So you will learn these tricks by experience. Yes, koi I'm just explaining so that you can see how it is done, but you will get it by experience. You will learn by experience. That's the best way. So from 5 and 6, eliminating alpha between them, we get a is equal to minus f by m. तो अल्फ़ा को हटा देंगे यहाँ से सिंपली, बहुत ईजी है समझना. आर अल्फ़ा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है. So we get a equal to minus f by m. We put it in the third equation, and we get this. Now this we can use here, and now the only unknown in this equation that will be left is capital A, and solving for capital A we get this. And again, once we get capital A, we can get friction from here. Once we get friction, we can get small a, and we can get all the unknowns after that. So this is how we solve these 6 equations for 6 unknowns. So once you practice it well, it will not seem that difficult. So this question is very interesting, that it's not a very difficult question because some very new concept is not used. The concepts used are very basic, and that is why it is a very good question, because इतना लंबा सा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, बट सब कुछ बेसिक टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से यू गेट टू प्रैक्टिस योर बेसिक्स वेरी वेल. एंड वंस यू डू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, तो आपको वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बेसिक्स को अच्छे से करना, प्रिसाइज वे में करना, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू इन डूइंग इट एक्यूरेटली. क्योंकि आपने कहीं पे भी छोटी सी गलती करी तो द एंटायर क्वेश्चन विल go wrong. So through these long type of questions, you really get to practice your basics in a very accurate way. So I hope you liked the video, and thanks for watching.